I think in the last class we discussed what is Fibonacci series. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें 2-3 प्रोग्राम में मैंने एक लिंक शेयर किया था लीड कोड का. आप टाइम देके इसको ट्राई करेंगे, अदरवाइज यू विल सॉल्व इट, राइट? वो एक डिफरेंट प्रोग्राम था, अगेन ऑन प्राइम नंबर. आप क्वेश्चन देखे हैं किसी ने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आप ट्राई कीजिए, अगर हो गया है तो ठीक है. देखो, आई एम राइटिंग हियर. INT n. N means up to which term you want to print the Fibonacci series. I or A equal to -1, B equal to 1, कॉमा C. अब बोलेंगे सर -1 और 1 क्यों लिए? इसलिए अगर आप सीरीज को देखेंगे, सीरीज कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 से स्टार्ट हुआ है, तो -1 + 1 कितना होगा? If A equal to -1, Zero. B equal to 1, Zero. then C equal to A plus B, C equal to A plus B. -1 + 1 is 0. देखो लॉजिक क्या था? C equal to A plus B, print C, then A equal to B, that means A में B का वैल्यू स्टोर करो, B में C का वैल्यू, that means A में आ जाएगा B का वैल्यू, B में आ जाएगा C का वैल्यू. Understood or not? And again repeat, C equal to A plus B, 1 plus 0 1, and again print C. तो 0 प्रिंट हुआ था, 1 प्रिंट होगा. उसके बाद again A equal to B, A equal to B, and B equal to C. Again go to the top, C equal to A plus B, 0 plus 1, and again print 1. तो जो सीरीज था 0 1 1 था. उसके बाद A equal to B, A में आ गया B, and B में आ गया again C. So now go to the top, C equal to A plus B, 1 plus 1 is 2, and print C, that is 0 1 1 2, क्योंकि addition of previous two number is the third number. Again 1 plus 2 3 होगा. कैसे? Now A equal to B and B equal to C. Go to the top, C equal to A plus B, that is 3, print C. So that means 3. So like this will continue. That means this piece of code will continue till I reach the end. Till I reach the 10. So what is n? N means you want to print the Fibonacci series. You want to print the Fibonacci series up to 10th term. That means n हम यूजर इनपुट देंगे एंड I 0 से n तक चलेगा एंड ABC के जरिए हम Fibonacci सीरीज प्रिंट करेंगे. अंडरस्टूड? और जनरेट करके प्रिंट करेंगे. यहीं पर पूछेंगे printf enter the term up to which you want to print the series, correct? Scan a %d ampersand n. तो now sorry ampersand n, यहाँ परसेंट आ गया. ठीक है. उसके बाद फॉर
I equal to 0, I less than n, I plus plus. That means this loop will count the number of term printed in the series. If this is a series, then each element in the series is known as term. This is first term, second term, third term, fourth term, fifth term. We want to print n up to nth term, So we need to count the loop. We need to repeat the this piece of code. Understood? How many times? N time. So we are starting from 0 less than n or 1 less than equal to n. If you start counting from 1, then it will be less than equal to n, right? Then here you just write C equal to A plus B, जो मैंने राइट में लिखा. Now print f percentage d, थोड़ा सा स्पेस दे दो, C. Now A equal to B and B equal to C and finish. Over. Understood? हो गया आपका प्रोग्राम. The fast program taking little time. देखो, no error, no warning. Now let us execute this. Enter the term up to which you want to print the Fibonacci series. Suppose मैंने 10 दिया. देखो यहाँ पर ये 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल 10 एलिमेंट प्रिंट हुआ इस सीरीज के अंदर. तो फिबोनाची सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट प्रिंट हुआ. अंडरस्टूड? क्योंकि हमने इनपुट दिया था n is 10. तो 0 to 10 तक लूप चला. ये जो लॉजिक है इसको हमने रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया. C equal to plus B, print C, A equal to B, B equal to C. Everybody understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only few students, those are regularly interacting, they are only responding, they start Yes, sir. silent, just to silent. भाई हम दिन रात सोचते हैं आपके ऊपर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का समहाउ 95% प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि उनका पेपर रिलेटेड पेपर है. लेकिन आप लोग अगर कोशिश करोगे तो उनसे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा प्लेसमेंट में. कमी क्या है बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है बताओ. अंडरस्टूड आपको? तो ये हो गया आपका प्रिंट द फिबोनाची सीरीज. अभी होगा प्रिंट द नंबर दोज आर नॉट इन द फिबोनाची सीरीज, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था नहीं गाइस? Yes, sir. तो क्या करेंगे, देखो मैंने इसको कॉपी किया, यहीं पर पेस्ट किया. लुक एट दिस. अच्छा, C इक्वल टू A प्लस B के बाद हम प्रिंट C करेंगे, तो C इज द फिबोनाची सीरीज. am I right? Yes, sir. तो प्रिंट C नहीं करेंगे. देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 and 13. सपोज ये C है, ये A होगा, ये B होगा, बिकॉज C इक्वल टू A प्लस B. am I right or not? Yes, sir. तो B एंड C के अंदर जो एलिमेंट है, B एंड C के अंदर जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना. दैट मीन्स I इक्वल टू, और अदरवाइज यू कैन से J इक्वल टू B प्लस 1 एंड J लेस देन C, J प्लस प्लस, प्रिंट J. अब मुझे बताओ B प्लस 1, B का वैल्यू अभी कितना है? 6. नहीं, B का वैल्यू 5 है ना, B का Yes, वैल्यू 5 है, तो B प्लस 1 कितना हुआ? 6. 6. तो 6 लेस देन 8, ट्रू, तो प्रिंट 6. J प्लस प्लस, J हुआ 7, 7 लेस देन 8, ट्रू, तो प्रिंट 7. दैट मीन्स 5.8 के अंदर 6, 7 प्रिंट हो गया या नहीं? Yes, sir. तो उसके बाद ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C. गाइस am I right or not? Yes, sir. A, B, C. तो ना B एंड C के अंदर फिर एलिमेंट प्रिंट होगा, तो J इक्वल टू B प्लस 1. तो B प्लस 1 मीन्स 8 प्लस 1 9, तो ये 9 से स्टार्ट होगा. C कब तक चलेगा? 13. दैट मीन्स 9 टू लेस देन 13. दैट मीन्स हियर 9, 10, 11, 12 प्रिंट होगा नहीं? इन द सेम वे यहां पर 3 and 5, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो J B प्लस 1. B प्लस 1 मीन्स बताओ मुझे, B प्लस 1 कितना होगा? 4 होगा. तो A में 4, तो C इज 5. 4 लेस देन 5, ट्रू, तो प्रिंट J. दैट मीन्स 4 प्रिंट हुआ. उसके बाद J प्लस प्लस, J हो गया 5. 5 लेस देन 5, फॉल्स,
तो लूप से बाहर आ गए। अंडरस्टूड? यस तो ये जो 2 लाइन है ऐड करना है, एग्जिस्टिंग लॉजिक में 2 लाइन ऐड करना है। 2 लाइन कहां ऐड करेंगे आप मुझे बता दो, ये 2 लाइन कहां ऐड करेंगे आप मुझे बता दो। मैंने कोड लगभग लिखा हुआ है, कोड में आपको बताया गया है यू नीड टू राइट दिस 2 लाइन इन द एग्जिस्टिंग कोड बाय व्हिच द आउटपुट वुड बी लाइक दिस, आउटपुट वुड बी लाइक जहाँ दिस। पे आप ब्लू करके हाईलाइट करके रखे हैं वहां पे सब बताओ गाइस। सब printf इस स्टेटमेंट को हटा के यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। Yes, that means here we need to declare the variable j and just write for j equal to b plus 1, j less than c, j plus plus, and here write j. Yes sir, yes. हो गया, same program 10 दिया, काफी बड़ा आ गया और छोटा कर देते हैं थोड़ा। 6 देते हैं, ओनली 4 आता है क्यों? 1 2 3 4 5 6, अरे एक ही एलिमेंट मिसिंग है 4। यस or not? Yes, sir. That's a Yes, 4 is sir. printed। और एक देते हैं 8 देते हैं। देखो 8 मीन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, am I right? तो 13 के अंदर जितने एलिमेंट फिबोनाची सीरीज में नहीं है वो प्रिंट होगा। क्या क्या नहीं है? 4 नहीं है, प्रिंट हुआ। 6 7 9 6 7 9 प्रिंट हुआ। 10 11 12 10 11 12 प्रिंट हुआ। अंडरस्टूड? Yes sir, yes sir. Right. आप सर ये आपको पता है, आपने लिख दिया, या जिसको पता है वो लिख देगा। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल थिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे लॉजिक बढ़ेगा, क्योंकि ये प्योरली लॉजिकल एबिलिटी, दैट मीन्स आपकी थिंकिंग एबिलिटी। जितना आप सोचोगी उतना आप कर पाएंगे, अगर आप नहीं सोचोगे नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आई एम कंप्लीटली ब्लैंक, आई एम अनएबल टू थिंक वेयर टू स्टार्ट। यू फास्ट स्टार्ट, एरर आ रहा है, बिल्कुल कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, इट्स वेलकम। तो धीरे धीरे उसके अंदर, जैसे ही हमने कोड को देखा, एक कोड को आप देखेंगे, ड्राई रन करेंगे, कुछ तो आइडिया होगा, 1% 2% 3% तो आइडिया होगा। वहीं से धीरे धीरे जब आप करेंगे तो दैट विल बी इंक्रीज अप टू 60% 70%। 60-70% अगर प्रोग्रामिंग स्किल हो गया तो यू कैन क्रैक मेनी ऑफ द कंपनी। 100% स्किल जिसका, नो वन कैन से आई एम 100% स्किलफुल इन प्रोग्रामिंग, नो वन कैन से इन दिस वर्ल्ड एटलीस्ट। तो ये अनदर प्रोग्राम इन फिबोनाची सीरीज। अंडरस्टूड? हाँ पूछे सर। फिबोनाची सीरीज में 0 से स्टार्ट होता है या 1 से स्टार्ट होता है? 0 से ना, 0 1 1 2 बहुत 3 जगह पे दिया रहता है कि 1 से स्टार्ट करो, 1 1 2 3 ऐसे करके। 0 ठीक है, तो और 1 1 से स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे बता मुझे? यहां से 0 लिख देंगे, यहां से। ये तो आपका नॉन फिबोनाची नंबर है, ये ना ऊपर वाले में लिखेंगे। यहीं पर लिख देंगे 0। आप देख लो 8, हाँ एक 1 मिस हो गया ना, -1 1 था, -1 +1। मैं ये फास्ट 2 नंबर को ही प्रिंट कर सकता हूँ, फास्ट 3 नंबर को प्रिंट कर दूंगा मैनुअली। मैनुअल में प्रिंट है 0 1 0 सॉरी 1 1 2 प्रिंट कर दूंगा मैनुअली। ऐसा थोड़ी होगा। मैं चाहता हूँ लॉजिकली। लॉजिकली मीन्स ये लॉजिक जैसे हो रहा है लॉजिकल। ठीक है, सोचो ना थोड़ा, ए बी सी बताओ, लॉजिक भी चेंज करेंगे हम, कानेप के नीचे प्रिंटिंग ठीक कर देंगे। हाँ हो म्यूट 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 या म्यूट करो। अंडरस्टूड? आप बोल रहे हो यहीं पर प्रिंट बी कर देंगे। अंडरस्टूड? मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसी लॉजिक के जरिए कैसे करेंगे। तो दैट इज वेरी शॉर्टकट मेथड। अगर ठीक है, अगर इसको 1 एंड 0 करेंगे तो सी ए प्लस बी, तो प्रिंट 1, तो ये 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद ए इक्वल टू बी,
बी इक्वल टू सी, तो 0 + 1 1। हाँ ठीक है, हो गया 1 0 कर देंगे, ये 1 ये 0, आई थिंक इट विल सॉल्व द पर्पस। हो गया। यस सर। सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, और क्या, थोड़ा बहुत लॉजिकली लिखे सोचो। क्वेश्चन चेंज होगा तो लॉजिक डेफिनेटली चेंज होगा, तो डोंट यूज शॉर्टकट मेथड, ऊपर प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ बी, ऐसे मत करो। सर पूछो। और नॉन फिबोनाची नंबर्स के लिए हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, जैसे कि क्या? ए और बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं सी में, हाँ, तो सर हर बार तो हम लोग मतलब ए और बी को, जैसे बी और सी के बीच में जो डिफरेंस है उसको प्रिंट कर देते हैं बस। बी और सी के अंदर जो डिफरेंस है, हाँ वही तो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, b+1 से लेके सी तक लूप चला के प्रिंट तो कर रहे हैं हम। यस सर लूप नहीं लगेगा अगर डिफरेंस प्रिंट करेंगे तो ना, कैसे डबल print लूप करेंगे? नहीं लगेगा। कैसे कैसे बताओ, अब हो सकता है हो जाए। लाइक जहाँ पे सर एक सेकंड मैं आ Yes, जाता हूँ sir. इस प्रोग्राम को। हाँ बताओ, हाँ बताओ। बताओ क्या करेंगे, क्विक। सर ये फॉर लूप को अगर हटा के हम प्रिंट एफ कर दे डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, सी माइनस बी। सी माइनस बी दिस मच हाँ हो जाएगा, सेम लॉजिक में। हाँ सर, बात तो एक ही हुआ। हाँ आ जाएगा सर। ठीक है, मैंने फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, वो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, इसको तो उसको तो चेंज करना होगा। क्या चेंज करना है, इस लॉजिक में नहीं होगा भाई। आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप दो एलिमेंट के अंदर मल्टीपुल नंबर है, उस मल्टीपुल नंबर को कैसे प्रिंट करोगे? वही सर खाली एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा। हाँ, मल्टीपुल नंबर को कैसे प्रिंट करोगे? यस सर यस सर। तो बिना लूप कैसे होगा? मैंने जानबूझ के इसको लिखाया ताकि आपको पता चले नहीं इसमें नहीं हो सकता। जहां पर मल्टीपल नंबर है तो वहां पर लूप चाहिए। एनी टाइप ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, तो दिस इज मैंडेटरी, अंडरस्टूड, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो ये दो प्रोग्राम हुआ फिबोनाची सीरीज के अंदर, एक था सीरीज और एक था नंबर नॉट इन सीरीज, और एक होगा प्रिंट द nth टर्म ओनली, nth टर्म इन द फिबोनाची सीरीज। डू यू अंडरस्टैंड nth टर्म? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर 0 1 1 सिर्फ 2 nth टर्म ही प्रिंट करना 5 8 13, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज n अगर 8 हुआ तो आपका तो रिजल्ट बस 13 ही प्रिंट करेंगे। अगर n 7 तो हुआ जो आपका रिजल्ट आएगा 8, n अगर 6 हुआ आपका रिजल्ट आएगा 5। दैट मींस एक पर्टिकुलर टर्म को हम प्रिंट करेंगे, सर तो दैट मींस सीरीज जनरेट सर तो सी का सीरीज जनरेट होगा। सर तो सी का वैल्यू एक अरे में डाल देंगे। आरए में क्यों डालेंगे? सर अरे में डाल देंगे, फिर nth वैल्यू जो nth वैल्यू तक चलेगा तो लूप प्रिंट के nth बाहर वाले प्रिंट कुछ आरे नहीं चाहिए, सुनिए, कुछ आरे नहीं चाहिए, लिसन टू मी केयरफुली, कुछ आरे नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रोग्राम है, मैं दिखाता हूँ। लूप का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करने से तो हो जाएगा। लूप के बाहर प्रिंट कर लेंगे। एग्जैक्टली। देखो, किसी ने पूछा था, मैंने यहाँ पर लिखा था। देखो जो उन्होंने बताया अभी, ये सीरीज हुआ, प्रिंट हुआ 8 टर्म इन फिबोनाची सीरीज इक्वल टू 13। अगर आप सीरीज प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो सिंपली इस प्रिंटफ को क्या करो, कमेंट कर दो। यहाँ पर हमने कहा अरे यूज किया, अरे नहीं यूज किया ना, हमने दिया 8।
8 टर्म फिबोनाची इज इक्वल 30। ठीक है, 7 देंगे, 7 देंगे, 7 टर्म इज 8, 6 देंगे, 6 टर्म इज 5। अंडरस्टूड? तो क्या किया, जो सीरीज था वही सीरीज रहने दिया, प्रिंट एफ सी मुझे नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? इसको मैंने डिलीट कर दिया या जो भी है कमेंट कर दिया। अंडरस्टूड? सीरीज जिस तरह था उस तरह हुआ। बस यहीं पर मैंने लिखा लूप से बाहर आने के बाद nth टर्म इन फिबोनाची सीरीज इक्वल टू सी। अंडरस्टूड? क्योंकि सी तो जनरेट हो चुका है, सी प्रिंट नहीं हुआ था, तो सी में लास्ट वैल्यू होगा, तो बाहर आके मैंने सी को प्रिंट कर दिया। तो जो किसी एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, सर हम एन तक चलेंगे, बाहर आके सी को प्रिंट कर देंगे। अंडरस्टूड? तो नथिंग इज देयर, जो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम रहा, बस बाहर आके मैंने एक प्रिंटफ कर दिया एंड अंदर वाले प्रिंटफ को डिलीट कर दिया या हटा दिया। कोई लॉजिक में चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पर टेप किस लिए लिया है मैंने, क्योंकि जो nth टर्म है n यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है या नहीं, n यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए n का वैल्यू टेप में डाल दिया ताकि मैं प्रिंट कर सकूं nth टर्म इन फिबोनाची सीरीज इज इक्वल टू दिस। 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म को प्रिंट करने के लिए इसलिए मैंने टेम्पररी वेरिएबल टेप लेके n का वैल्यू को कॉपी करके रखा ताकि n यहाँ पर चेंज हो रहा है, n जब 0 हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। इज इट ओके? एक आउटर फॉर लूप तो भी तो हो जाएगा फ्लैग लेके। आउटर फॉर लूप, ये दो लूप मुझे क्यों चाहिए, अरे क्यों चाहिए मुझे दो लूप नहीं? अरे ये आज मुझे बताओ, ये सबसे इजी मेथड है या नहीं ना? इज देयर एनी अदर इजी मेथड, टेल मी। अरे इज देयर एनी? काउंटर यूज करने से भी हो जाएगा। हाँ, यस यस यस, काउंटर यूज करने से भी हो जाएगा। काउंटर? हाँ, ये काउंटर की जरूरत ही नहीं है। तो आप बोला कोई और इजी मेथड है तो वो उसी का बोल। ना 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 ना, अब काउंट करोगी तो फिर और एक वेरिएबल बढ़ेगा ना, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगी और एक वेरिएबल बढ़ेगा ना। एबीसी चाहिए मुझे, एबीसी चाहिए या नहीं बताओ मुझे, क्योंकि सीरीज तो जनरेट करना पड़ेगा। एन चाहिए, nth टर्म, तो टेम्प मैंने इसलिए लिया क्योंकि एन वेरी हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। एंड जो प्रोग्रामिंग जगह पे सिंगल फॉर लूप से भी तो हो सकता था। क्या क्या? व्हाइल लूप के जगह पे सिंगल फॉर लूप। सिंगल फॉर लूप मींस फॉर लूप भी तो होगा, सिंगल फॉर लूप क्या? हाँ करो, इसमें टेप भी नहीं लगता सर। टेम्प में क्यों नहीं लगेगा टेम्प? हाँ? तो एन का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, तो नहीं मैं यहाँ पर सर, इनका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, क्या बोलते हो? आई 0 से लेके फिर n आई तक लोगी? चलेगा। अरे यार तुम हाँ, कमाल तो के लड़के हो। हाँ, हाँ, हाँ। तुम टेम्प नहीं लोगी तो आई लोगी, मैंने टेम्प लिया तुम आई लोगी। यस सर। अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो इस Excuse me, तरह sir. का, हाँ यस, सर वो Corrections n easy हो माइनस सकता है माइनस एक क्यों हो रहा है? एक करके कौन पूछ रहा है अभी? सर सर वो n ये माइनस क्यों हो रहा है? अरित्र पूछ रहा है, अरित्र के बाद अर्नब। हाँ अरित्र, हाँ एन सर, माइनस माइनस सर क्यों हो रहा है? एन यस सर। अगर 5 है तो 5 से 0 तक काउंट हो रहा है। अब 0 से 5 तक जा सकते हो या 5 से 0 तक आ सकते हो। काउंट नहीं करोगी तो फिर लूप कितने बार चलेगा पता कैसे चलेगा? काउंटिंग हो रहा है यहाँ पर। हाँ सर, वही सर प्लस प्लस भी कर सकते हैं ना? अब मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है न, अच्छा अच्छा अच्छा। n ग्रेटर देन 0 लिया है। n अगर 5 है तो 5 ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? जब 0 हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होके बाहर आ जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, एनीबॉडी एल्स? सर ये रिकर्शन से इजी हो सकता है ना रिकर्शन में क्यों इजी होगा? सर? हम No. n-2 plus n Don't use recursion when your problem can be easily solved using iteration. हम recursion पढ़ेंगे आगे, very important concept है। When to use recursion I will tell you. Understood? हमेशा हर प्रोग्रामिंग के लिए हम recursion यूज नहीं करते हैं। Sir, Recursion recursion takes less time than for loop. Is that statement true? recursion Takes less time, like time complexity recursion की for loop से या iteration से कम होती है। Absolutely not. Okay. Rather, recursion take more time and space. Each time a function calls itself a copy of the same block created again in the memory, and it uses also stack.
स्टैक में पुश एंड पॉप होता है, दैट विल टेक मोर टाइम, अंडरस्टूड? So recursion is a costly affair, okay, but that's why it is suggested when to use recursion, when to use iteration आगे जाके पढ़ेंगे जब recursion का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अभी हम कंसेप्ट के ऊपर नहीं गए हैं, ओनली वी आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका फिबोनाची। जैसे मैंने आज एक प्राइम नंबर मैंने जो दिया है लिंक, सब जाके उसको ट्राई करो, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन ऑन प्राइम नंबर है, अंडरस्टूड? मैं एक प्रोग्रामिंग करूंगा एंड आपको और एक प्रोग्रामिंग दूंगा। कैन यू गेस ये कौन सा प्रोग्राम है? ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, ये सबसे इजी लॉजिक है। अरे कौन सा प्रोग्राम हुआ है? लिखा हुआ है जीसीडी लिखा हुआ है, अंडरस्टूड? तो एवरीबॉडी नोज गाइस, दोज आर लिसनिंग टू मी, अगर आप लॉगिन करके कहीं पर अपना काम कर रहे हो तो यू आर जस्ट चीटिंग योरसेल्फ। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं ठीक ठाक सुन रहे हैं, अंडरस्टूड? दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो, मुझे नहीं हेल्प कर रहे हो। इफ यू आर जस्ट लॉगिंग इन फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस एंड डूइंग योर अदर टास्क, दैट मीन्स यू आर चीटिंग योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग व्हिच विल हेल्प यू नॉट ओनली टू गेट ए जॉब, टू हेल्प यू टू गेट ए गुड जॉब इफ यू हैव गुड प्रोग्रामिंग स्किल। आई रिपीट, ओके। एनीवे, मैंने हमेशा एग्जांपल देता हूं आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट का 2016 पास आउट से 16 और 17, आपका क्या स्कूल में होंगे शायद, am I right? 7, 8 या 9 में होंगे, am I right? यस सर। यस सर। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टूडेंट जो ईटीसी ब्रांच का टॉपर था, आई एम अनेबल टू रिकॉल हिज नेम, फेसबुक में ढूंढना पड़ेगा, ओके, ईटीसी ब्रांच का टॉपर, ही हैज ओनली वन प्रॉब्लम, 9.8 9.9 हमेशा उसका, कभी कभी तो कुछ सेमेस्टर में 10 आता था आउट ऑफ 10। एनीवे, he is very studious, meritorious, obedient, everything was there, but only lacuna was there, fluency थोड़ा weak था, he was unable to speak in English fluently, right? तो काफी प्रॉब्लम था, काफी सारे डे 0 में नहीं हुआ, डे 1 में नहीं हुआ, he was frustrated, थोड़ा हो गया। तो जब उसको बुला के हमने बात की, पता चला जे सर मेरा मेजर जो प्रॉब्लम हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, मैं पीआई में आई एम अनेबल टू स्पीक। तो 4-5 फैकल्टी हम जो थे, खान सर से लेके सब सारे फैकल्टी हम उसको काउंसलिंग हुआ, उसके बाद मॉक पीआई हुआ, ऐसे बोलो, आराम से बोलो, डोंट गेट पैनिक, अंडरस्टूड? तो ये सारे सब मिलके उसको इतना मोटिवेट किए, यू डोंट बिलीव दैट ही इज सिलेक्टेड इन, कैन यू रीड दिस? HP हाउलेट पैकर्ड R&D में वो सिलेक्शन हुआ उसी टाइम, 2016 या 17 पास आउट था, एंड 9.5 लाख उस टाइम, एंड आई थिंक ही वाज पोस्टेड इन नाउ USA। मतलब अभी किस फील्ड में, मतलब कीट का स्टूडेंट है, हमारी कीट का ही स्टूडेंट है, 2016 और 17 ना, मतलब किस फील्ड में काम कर रहा है, मतलब HP में? SP means Hewlett Packard R&D. So he wants to ask about that he got placed from KIT only or? KIT only. Which field he is working in, like R&D. No, what type of work he does? वो पता नहीं। Sir, he is asking about the work domain. Okay, no, I do not know, क्योंकि वो जो जो पास आउट होने के बाद उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद हमारे साथ कितना 100,000 ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो सबके साथ 1-to-1 बातचीत नहीं हो पाता है। फेसबुक में था, फेसबुक में उन्होंने लिखा था पूरा अपने बारे में लिखा था, जो कैसे सारे टीचर मिलके हेल्प किए, कास्ट का सारे टीचर मिलके हेल्प किए, जो मोटिवेशन थोड़ा किए, जो मैं डे 0 में सिलेक्शन नहीं हुआ, डे 1 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ,
एंड एसपी आर&डी आया था लेट में, मुझे याद है नवंबर में आया था, नवंबर एंड में आया था एसपी आर&डी। 7 स्टूडेंट वर सिलेक्टेड एंड ही वाज अमंग देम। 9.5 लाख पैकेज। एंड एक एचआर ने बताया, हमारे जो सरनजीत सिंह साहब आप जानते हो ना, हेलो Yes, sir. सरनजीत साहब को उनका एचआर ने बताया, जी ये जो एक लड़का हमने 7 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, उसमें से एक लड़का है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हिज नेम इज दिस एंड ही इज गोल्ड। तो अभी तक वो कितने कंपनी में सिलेक्ट हुआ? आर यू अलाउइंग ऑल द प्लेस स्टूडेंट? नो नो सर, वी आर नॉट अलाउइंग एनी प्लेस स्टूडेंट टू सिट इन दिस कंपनी because he is the dream company, SPR&D. Now, how he is not selected so long? Because the interview process is already started from June, and this is December. Sir, due to lock, he may not be selected. Now, we are fortunate we got a engineer like him. He is so meticulous, he is so studious. His fundamental is very clear in electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका फंडामेंटल वेरी क्लियर है। अंडरस्टूड? तो ये फीडबैक था। अंडरस्टूड? सर एचपी आर&डी मतलब अभी आते हैं, मतलब लास्ट 4 इयर्स से तो नहीं आया है आर&डी। एचपी कभी कभी आता है, एचपी आर&डी नहीं आया है। रिसर्च एंड वो डेवलपमेंट। मतलब जो एचपी आर&डी लिया है वो तो मतलब 7 स्टूडेंट किस ब्रांच का थे? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का थे, कंप्यूटर साइंस का थे, सब मिला के 7 स्टूडेंट थे। ओ सर इस बार क्वालकॉम आई थी किट में। हाँ। काफी अच्छे कंपनी आते ना हैं। मतलब Only depends- इस बार मतलब इस साल मतलब ना पिछले साल आए थे? पिछले साल 2020 में। हाँ 2021 पास आउट। ओ अभी कम टू पॉइंट। अभी देखो, अभी प्लीज यू डोंट थिंक अबाउट, मेरा सजेशन है, सिंसियर सजेशन है, डोंट थिंक अबाउट कंपनी कौन सा कंपनी आ रहा है, कौन सा कंपनी नहीं आ रहा है, इसके बारे में मत छोड़ो। आप ओनली गैदर नॉलेज, गेन नॉलेज, ओनली नॉलेज कैन हेल्प यू, वी विल ओनली जस्ट गाइड। देखो यहाँ पर एक वेरी वेरी इजी लॉजिक है जीसीडी और एससीएफ। इसमें सरप्राइजिंग क्या है ना, दिस इज ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ 2 नंबर। क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए प्रोग्राम फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ n नंबर। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. 15 30 45 जीसीडी कितना होगा? 15 15। तो n नंबर का जीसीडी निकालने के लिए प्रोग्रामिंग लिखो। मैं ये आपके लिए टास्क दे रहा हूं, दिस इज फाइंडिंग आउट द जीसीडी ऑफ 2 नंबर। तो देखो लॉजिक क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। लेट अस टेक, आप मुझे बताओ 8 दो एंड हियर 24 दो, ठीक है? 8 and 24, b greater than 0, ट्रू, टेम्प इक्वल टू a mod b। a mod b मुझे बताओ 8 में 24 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना रहेगा? 8 0 हाँ कैसे? 8 by 24, हाँ सॉरी 8 by 24 कितना होगा? 8 आएगा ना। 24 by 8 करेंगे देन 0 होगा रिमाइंडर। यस नॉट? दिस इज रिमाइंडर ना। Yes, sir. तो 8 mod 24, I repeat 8 mod 24, remainder is, this is remainder operator. Do you know this remainder operator? Yes, sir. So remainder operator produce remainder, so it will produce 8. So now a equal to b, b equal to temp. ये swapping है, swapping है नहीं? temp equal to a mod b, a equal to b, b equal to temp। a में आ गया b, a में आ गया b and b में आ गया temp। So now go to the top, loop है, b greater than 0, b is 8, 8 greater than 0, yes, temp equal to 24 mod 8, 24 mod 8, remainder is 0। now a equal to, बताओ मुझे, a equal to b, b equal to 0, ऊपर चलो, 0 greater than 0, false, लूप से बाहर आ जाओ, printf gcd equal to a। 8 and 24 का gcd 8 नहीं है? अरे 8, अरे guys, are you listening to? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please at least a few students reply me, otherwise मुझे पता नहीं चल रहा है whether I am audible to you guys or not. Okay, anyway, let us go ahead. A, B, C, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। Let us take 7
and here 13. ठीक है, 13 greater than 0, true. तो 7 mod 13 कितना होगा? 7 mod 13 7. Now A equal to B, B equal to 7. Go to the top and 7 greater than 0. Yes, 13 mod 7 कितना होगा बताओ? 6 होगा ना? 6. Yes, sir. 6 होगा. ये C नहीं, temp है. Sorry, 6. A equal to B, B equal to temp. ऊपर चलो. 6 greater than 0. Yes, 7 mod 6 कितना होगा? 1. A equal to B, B equal to 1. ऊपर चलो. 1 greater than 0. Yes, temp equal to 6 mod 1. 6 mod 1. 6 में 1 डिवाइड करो. करो ना. कितना हुआ? 0. 0. So now go to the sorry, A equal to B, A equal to B, B equal to 0. Go to the top. 0 greater than 0. False. Comes out of the loop. GCD equal to A. 1. 7 and 13 का GCD 1 नहीं होगा. जी sir. Because both are prime number. Definitely GCD is 1. Am I right? So Yes, this is sir. this is a one mathematical logic. Understood? तो हर लॉजिक आप खुद डिफाइन कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन यूज मैथमेटिक्स बुक. कभी कभी मैथमेटिक्स से भी कुछ लॉजिक हम निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड. समवन सेंड मी वन प्रोग्राम ऑफ जीसीडी ऑफ 2 नंबर. इफ A greater than B, इट विल टेक मोर टाइम. भाई किसने सेंड किया है? बट एनीवे इट इज अप्रिशिएटेड. अर्नव सेंड किया है टीसीएस का. अप्रिशिएटेड, बट इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज लूप के अंदर फिर इफ यूज किए हैं. हमारा यहाँ पर इफ नहीं है. ओके. एनीवे, ऑल लॉजिक एज ए बिगिनर, ऑल लॉजिक, जो भी लॉजिक आप यूज कर रहे हो, पहले आंसर आने दो. आंसर आने के बाद एक लॉजिक में सॉल्व हो गया, फिर उसके बाद चेक करो उससे कोई एफिशिएंट कोड है या नहीं है. ओके, दैट इज द पॉइंट. तो ये हुआ जीसीडी. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम? वेरी इजी लॉजिक है. देखो, इसी में मैं एलसीएम निकालता हूं. एलसीएम कमा सी कमा डी, यहीं पर लेते हैं. सी इक्वल टू ए, डी इक्वल टू बी. दैट मीन्स मैंने ए एंड बी का कॉपी रख दिया. किसमें? सी एंड डी में. यहीं पर लिखूंगा मैं ए सी इंटू डी बाय ए. $15, 5. Is it correct? Correct sir. और एक लिखते हैं 15, 25. Is it correct? थोड़ा Yes चेक sir. करो. Yes. सब थोड़ा चेक करो. देखो, इसमें कोई मैंने जो एग्जिस्टिंग लॉजिक था सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया. इसका एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय जीसीडी. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय जीसीडी, एलसीएम. तो जीसीडी, इस प्रोग्राम में जीसीडी क्या था? ए था या नहीं? Yes, sir. Yes. तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सी इंटू डी बाय जीसीडी. जीसीडी वाज ए, तो दैट्स व्हाई मैंने ए को डिवाइड कर दिया. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सी एंड डी क्यों किया? क्योंकि ए बी यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए ए एंड बी का कॉपी मैंने सी एंड डी में रख दिया. अंडरस्टूड? इट विल नॉट चेंज आफ्टर लूप, इसलिए मैंने सी एंड डी किया. सी एंड डी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय जीसीडी. तो दैट इज योर एलसीएम. तो आपके लिए टास्क है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बताएंगे या मैं पूछूंगा ग्रुप में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट प्राइम नोड प्रोग्राम. एंड अभी मैंने 2 प्रोग्रामिंग दिया. क्या प्रोग्रामिंग? ना जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ एन नंबर. अगर जीसीडी हो गया एन नंबर का, तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट द एलसीएम. अंडरस्टूड? Yes sir. Yes, sir. n number means it may be 3 number, 4 number, 5 number.
You can use function, but please don't use Google, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाला. You try, नहीं हुआ तो अलग बात है. Understood? You can refer mathematics. जो जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है उसी को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. This is a very good question. Can you read the question, guys? Write a program to check a number is happy number or not. Happy number or not. If repeated sum of square of each digit is 1, then given number is happy number. What does it mean? Suppose इसको ऐड करो, कितना होगा? 10. फिर ऐड करो, कितना होगा? 1. If repeated sum of square, sorry, मैंने गलत बोल दिया. Repeated sum of squares of each digit is 1, then given number is happy number. For example, 32. 3 square कितना है? 9. 9 square 4. plus 2 square. That means 9 plus 4 कितना हुआ? 13. 13. फिर 1 square 1, फिर 3 square कितना हुआ? 9. 9. कितना हुआ? 10. फिर 1 square कितना हुआ? 1. 0 square 1. That is 1. So 32 is a happy number. If repeated sum of square of each digit, हर digit का repeated sum of squares, हर digit का square निकालो and उसको add करो. 3, 2, 3 का square, 2 का square. तो add करो 9 plus 4 13, फिर 1 square 3 square. So like this until your number is not reduced to single digit. When your number reduced to single digit, check if it is 1 or not. If it is 1, then given number is happy number. Understood? Question Yes, sir. समझ में आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me explain this logic. ये आपका प्रोग्राम है, इतना ही प्रोग्राम है, काफी छोटा सा प्रोग्राम है. देखो यहाँ पर अगर मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ. 32 देते हैं, गिवन नंबर इज हैप्पी नंबर. 33 देते हैं, नहीं होगा, गिवन नंबर इज नॉट हैप्पी नंबर. ओके, तो लॉजिक क्या है हम एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा, लास्ट पार्ट आपको सबको समझ में आएगा. अगर सम इक्वल टू 1, गिवन नंबर इज हैप्पी, अदरवाइज इट इज नॉट हैप्पी नंबर. am I right? Yes. Yes, sir. तो लॉजिक पोर्शन इतना ही है, तो इस पोर्शन को आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये रिजल्ट प्रिंट करेगा. लॉजिक पोर्शन इतना है. इसमें ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है नॉम ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली जो भी नंबर आप इनपुट देंगे नाम में टिल ग्रेटर देन 0 ये लूप चलेगा. अंडरस्टूड? तो क्या करेंगे ना, पहले रिमाइंडर निकालेंगे. देखो यहाँ पर नंबर 32 है, ठीक है, रिमाइंडर ले लो. रिमाइंडर इक्वल टू नॉम मॉड 10. नॉम मॉड 10 कितना होगा? 2 होगा. ऑलवेज राइट मोस्ट डिजिट एज द रिमाइंडर. am I right or not? Yes, sir. 2. So now sum equal to sum plus remainder square, remainder into remainder. तो सम में कितना है? 0 है, तो 0 प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, दैट मींस 2 into 2 कितना हुआ? 4. 0 plus 4 कितना हुआ? 4. नाउ नॉम इक्वल टू नॉम बाय 10. 32 by 10 कितना होगा? 3. अरे हुआ या नहीं? प्लीज रेस्पॉन्ड. Yes, sir. उसके बाद आप पूछेंगे सर ये तो अब तक तो ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है, ये बीच में ये कंडीशन क्यों डाला? इसलिए डाला जब नंबर 0 हो जाएगा लेकिन सम अभी भी ग्रेटर देन 9 है. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? 32 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13. Yes, तो sir. सम 13 हो चुका है एंड नंबर 0 हो चुका है. नंबर 0 हो चुका मींस हम 2 का स्क्वायर निकाल चुके हैं, 3 का स्क्वायर निकाल चुके हैं. देयर इज नो मोर डिजिट इन द नंबर, तो नंबर ऑलरेडी रिड्यूस टू 0. लेकिन सम इज ग्रेटर देन 10.
सम ग्रेटर देन 9 मींस 2 डिजिट है। अगर 2 सर डिजिट आप है, चेक कर रहे हैं कि सम डबल डिजिट में है, सिंगल डिजिट में है। एग्जैक्टली, नॉट ओनली चेकिंग दैट, इट इज आल्सो चेकिंग अनदर थिंग। नॉर्म 0 है एंड सम ग्रेटर देन 9 है। नॉर्म 0 हो चुका है, सम ग्रेटर देन 9, अभी पता चल जाएगा। अभी देखो ना, अभी नॉर्म हुआ 3, तो नाउ 3 इक्वल टू 0, फॉल्स एंड समथिंग इज फॉल्स, तो ई पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप के एंड में आके ऊपर जाएगा। 3 ग्रेटर देन 0, यस। नाउ 3 mod 10, रिमाइंडर कितना हुआ 3, तो नाउ सम इक्वल टू सम प्लस 3 स्क्वायर, दैट मींस 4 प्लस 9 कितना हुआ 13। तो नाउ नॉम इक्वल टू नॉम बाय 10, देखो नॉम यहाँ पर 0 हो गया या नहीं। तो नाउ 0 इक्वल टू 0, ट्रू, नॉम इज रिड्यूस टू 0। सम देखो, सम 13 ग्रेटर देन 9, अगर 13 ग्रेटर देन 9 सम 2 डिजिट है, तो फिर इसका स्क्वायर लेंगे या नहीं? यस सर। और फिर इसका स्क्वायर लेंगे, दिस सम शुड बी इनिशियलाइज टू नॉम, बिकॉज ये जो सम है ये फिर न्यू नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, नॉम इक्वल टू सम। नॉम में क्या असाइन कर दिया, सम, एंड सम को 0 कर दिया, सॉरी सम को 0 कर दिया। सम को क्यों 0 किया? और सम को 0 नहीं करेंगे, सम में ऑलरेडी 13 है या नहीं, एंड दैट विल बी एडेड विद द नेक्स्ट वैल्यू, इसलिए सम को 0 कर दिया। लूप में ऊपर जाएगा, लूप में ऊपर जाके 13 ग्रेटर देन 0, यस 13 mod 10 कितना हुआ, 13 mod 10 कितना हुआ 3। तो नाउ सम इक्वल टू सम प्लस, देखो सम में 0 है, 0 प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ, 0 प्लस 9 कितना हुआ, बताओ मुझे 9। तो नाउ नॉम इक्वल टू नॉम बाय 10, नाम कितना हो गया 1। तो नंबर इज 1 इक्वल टू 0, फॉल्स, तो ये पार्ट स्किप करो, ऊपर चलो। 1 ग्रेटर देन 0, यस, तो 1 mod 10 कितना हुआ 1, हमारा राइट है ना। तो सम इक्वल टू सम प्लस, सम में 9 है, 9 प्लस 1 स्क्वायर दैट मींस 10, तो नाउ दिस इज 10। तो नाउ नॉम इक्वल नॉम बाय 10 दैट इज 0, तो नाउ 0 इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सम देखो, सम 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 9, यस, अगेन नाम इक्वल टू सम, फिर नाम हो गया 10, सम हो गया 0, अंडरस्टूड। फिर ऊपर जाएगा 10 ग्रेटर देन 0, यस, 10 mod 10 कितना हुआ, 10 mod 10 बताओ यार, 0। तो सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, सम इक्वल सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, सम में 0 था, 0 प्लस 0 इंटू 0 कितना हुआ 0 रहेगा। नाउ नॉम इक्वल टू नॉम बाय 10, नॉम बाय 10 कितना हुआ 1 हुआ, 10 बाय 10 1 नहीं 1। तो नाउ चेक करो, नॉम इक्वल 0, फॉल्स, स्किप करो, ऊपर आओ, 1 ग्रेटर देन 0, यस, 1 mod 10 कितना हुआ बताओ मुझे, 1 mod 10 1, अरे 1 mod 10 1 ना। तो नाउ सम इक्वल टू सम प्लस, सम में 0 है, 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो नाउ 1 नॉम इक्वल टू नॉम बाय 10, नॉम बाय 10 कितना हुआ 0, अरे 1 बाय 10 0 नहीं 0। तो नाउ चेक करो, 0 इक्वल टू 0, ट्रू, सम ग्रेटर देन 9, फॉल्स, सम इज 1 ग्रेटर देन 9 इज फॉल्स, तो ये पार्ट स्किप हुआ, तो इफ से बाहर आके ऊपर जाएगा, नाम इज 0 और नॉट। तो नाउ 0 ग्रेटर देन, गाइस दिस पार्ट इज विजिबल टू यू, sir, it has almost become invisible. ओके 10 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 0 है, अभी विजिबल हुआ, यस सर। 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, तो लूप से बाहर आ गया। तो चेक करो सम को, सम में कितना है 1 है, तो 1 इक्वल टू 1, ट्रू, गिवन नंबर इज हैप्पी नंबर, यस, गिवन नंबर इज हैप्पी नंबर। अंडरस्टूड दिस? Yes. Sir, yes. Sir, in this if condition, why sum is greater than 9, this condition has been set. मतलब 9 क्यों लिया गया? That means if sum is 2 digit, that means it needs to be added, क्योंकि हमको 1 चाहिए ना। Repeated square of each digit is equal to 1. Sum of square of sorry repeated, इसका डेफिनेशन क्या है मैं भूल गया। Repeated sum of square of squares of each digit is 1. Yes, correct. Repeated sum of square of each digit is 1, then the given number is happy number. Understood? तो repeated sum अगर निकालना है, that sum must be a single digit. अगर 1 से करोगे single digit होना चाहिए। अगर sum अभी 2 digit में है, again it needs to be squared. Okay. इसलिए हमने sum greater than 9 सेट किया। अगर sum greater than 9 है, मतलब 9 है, सिंगल डिजिट नंबर है।
Exactly. Less than 9 means single digit. अच्छा 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 ठीक है। Okay. एक second. सर इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है कैंडिडेट? डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। क्या होता है ना, कुछ कंपनी, टीसीएस जैसा कंपनी 20 मिनट से हाफ एन आवर तक दे देते हैं। लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली इस बार काफी टफ क्वेश्चन आया है टीसीएस की एग्जाम में। इससे भी टफ क्वेश्चन आया है। हाँ, इससे भी टफ क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए यू गाइज नीड टू pull up the socks and every day use your time truthfully. Understood? कुछ स्टूडेंट आपकी ईयर का, कुछ स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट है, and that means programmatically अच्छा means programmatically strong है। on that aspect I'm telling. तो मुझे बातचीत कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। उनका कहना था सर अभी तो काफी टाइम मिल रहा है क्योंकि घर से काम हो रहा है, घर से क्लास हो रहा है, तो इसलिए काफी टाइम मिल रहा है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग। जब कॉलेज ओपन होगा पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे टाइम। Okay. Anyway, so this is the concept. Today we are winding up the class. Okay. In the next class we will go ahead with more program. क्योंकि our objective is problem solving. Problem solving that means एक बार logic develop हो गया, concept 5 दिन में मैं सिखा दूंगा। ये जो array, string ये सब सिखा दूंगा। इसके बाद हम string में चलेंगे। Understood? Immediately string में नहीं जाएंगे क्योंकि loop के बाद हम चलेंगे pointer में। pointer concept पढ़ने के बाद फिर array, फिर string, then function recursion. Understood? Yes, sir. Yes. सर डोमेन स्किल्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट्स में ज्यादा स्ट्रेस पूरा सारे बेसिक, जैसे मैंने बता रहा हूँ बेसिक। सपोज आप योर व्हाट इज योर ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीएस? ईटीसी। इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर है या नहीं? हाँ। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मींस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक कांसेप्ट है, वेरी मतलब सर थर्ड सेम के सब्जेक्ट्स मेनली। एग्जैक्टली, वेरी बेसिक कांसेप्ट अगर आप प्रिंट करेंगे, वेरी बेसिक कांसेप्ट। अंडरस्टूड? एंड किसी ने सेंड किया एक प्रोग्राम, दिसारी आपने एक प्रोग्राम दिया है हैप्पी नंबर का। आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा ये लेंथी एंड आई यूज्ड रिकर्शन। आपने रिकर्शन यूज किया? ये रिकर्शन है? हेलो दिसारी? कैसे फंक्शन से आपने, हाँ रिकर्शन, हाँ ये रिकर्शन के अंदर फिर लूप क्यों डाल दिया? रिकर्शन शुड नॉट कंटेन इटरेशन। रिकर्शन इज इटसेल्फ इटरेशन। अंडरस्टूड? यस सर। एनीवे, तो आप अपने अपने तरीके से ट्राई कीजिए, ट्राई टू राइट द एफिशिएंट लॉजिक। तो मेरा सजेशन है, आप जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं एंड सारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई एम अप्रिशिएटिंग, यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ ओनली। वन मैटर ऑफ 1 आवर वीकली, ओनली 5 आवर का क्लास है। 2 एप्टीट्यूड, am I right or not? 2 एप्टीट्यूड, 2 टेक्निकल, 1 इंग्लिश, एंड 5 आवर क्लास आपको हम दे रहे हैं। क्या आपको, अच्छा गाइज मुझे बताओ ऑनेस्टली, आर यू गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास और नॉट? टेल मी ऑनेस्टली। अगर नहीं हो रहा है बोलेंगे सर बंद कर। अनफॉर्चुनेटली आपकी बैच में आज 240 to 60 स्टूडेंट थे, 260 अराउंड। बट आप देखेंगे ग्रुप 1 जो कंप्यूटर साइंस का ग्रुप 1 है, उसमें 500 अराउंड स्टूडेंट थे। एवरी डे 380 स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं। 380। कुछ स्टूडेंट दैट मींस 400 प्लस आते हैं, देखते हैं जब कुछ टॉपिक चल रहा है, उनको पता है, उसमें से 35 स्टूडेंट निकल जाते हैं, लेकिन एंड तक 380 स्टूडेंट रहते हैं 500 से। आपका स्ट्रेंथ देखिए, बताएं 500 है या नहीं? लेकिन आज की क्लास में मैंने एक टाइम में देखा था 260। अभी मैं बोल रहा हूं जब 220 स्टूडेंट है, 229 स्टूडेंट है। दिस इज वेरी बैड। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को कम चाहिए क्लास, क्योंकि लोग को ज्यादातर लोग ऑलरेडी पढ़े हैं एंड उनको हम गाइड कर रहे हैं। आप लोग गाइज, हम सेकेंड ईयर से कनेक्टेड है, am I right? Yes. You student are already present in the group created in the second year. Am I right, guys? Yes, sir. Okay. तो वहां से हम गाइड करके आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ो, प्रोग्रामिंग पढ़ो, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा।
ओके अभी से अगर आज की डेट से अगर आप ट्राई करोगी तो कमिंग 6-7 मंथ अगर टाइम को फ्रूटफुली यूटिलाइज करोगी, जो हम बोल रहे हैं एवरी डे अगर वो प्रैक्टिस करोगी, तो मेरे हिसाब से एवरीबडी विल गेट वेरी गुड जॉब. मार्केट इज ओपन फॉर ओनली गुड इंजीनियर्स, नॉट ओनली इंजीनियर्स. हर किसी के पास सर्टिफिकेट है, उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अच्छा ब्रेन चाहिए. एंड रिमेंबर सीबी में जो लिखोगी वही पूछेंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पूछेगा. पहले रिटिन क्लियर होना जरूरी है. No one is going to ask machine learning, IoT, data science in written. No one. I repeat, no one. और कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है, तो हमसे बात कराओ उसे. रिटन में कोई नहीं पूछेंगे. अगर सीवी में लिखेंगे, then you are inviting question on that area. रिटन में अरिथमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा. अंडरस्टूड. अभी ऑप्टम आया था, 42 स्टूडेंट सिलेक्टेड. डू यू नो ऑप्टम एक कंपनी है? ऑप्टम हेल्थ केयर. एग्जैक्टली, ऑप्टम हेल्थ केयर, यूनाइटेड हेल्थ केयर का वो कंपनी का नेम है, ऑप्टम हेल्थ केयर. इस बार आया है. हाँ, अभी yesterday result announced. 40 student selected. Let me no 42 पैकेज कितना पता है? 9.87 लाख. इट इज ए रिकॉर्ड. 9.87 लाख से इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बैच का था. कितने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सारे मिलके था. इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें कितने स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है मुझे पता नहीं, ब्रेकअप मुझे पता नहीं. मुझे नंबर पता है ग्रुप में जो डायरेक्टर सर पोर्ट किए हैं. एंड हाई रेडियस में 458 स्टूडेंट, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनिक्स है मुझे पता नहीं. हेल्थ केयर राइट? हाँ, हेल्थ केयर.